Hello students, today we will start exercise 3B, that is compound interest using formula from Salina. कौन सी publication? Salina publication for class 9th. First sum, the difference between simple interest and compound interest on a certain sum is 54.540 for 2 years. Compound interest is always greater than some simple interest, is rupee 54.40. Time is 2 years and rate 8% per annum. Find the sum. Here, इस चीज को उठा लो बेटा. Compound interest minus simple interest is rupee 54.40. Decimal हटा दिया बेटा, नीचे 100 आ गया. Now compound interest किसके equal? Amount minus principal, and simple interest formula P into R into T upon 100. 10 से 10 cancel. 544 upon 10. Now amount का formula बेटा, principal 1 plus rate over 100 की power T minus P अपने place पे P into R into T upon 100 किसके equal? 544 upon 10 के equal. How many terms are there? This into this, that is a one term. This is a second, this is a third. What is common in all? P. तो मैंने square bracket डाल 1 plus R over 100 the power T minus P is common, तो क्या बचेगा? 1 minus P is common, R into T upon 100 is 544 upon 10. Now principal as like 1 plus rate is given 8% per annum. 8 upon 100 the power T time is given 2 year minus 1 upon 1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी डाल सकते हैं 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Rate 8 time 2 upon 100 is 544 upon 10. Now principal as like, इनको बच्चे कट कर दिया, 4 2 8, 4 2 8, 25, 4 के टेबल पे. Square bracket, round bracket, 25 is the LCM. 25 plus 2 whole की power 2 minus 1 upon 1. यहाँ पे बच्चे 4 के टेबल पे 4 2 8, 25, 2 2 4 upon 25 is equal to 544 upon 10. Now principal as like 25 plus 2, 27 upon 25 whole की power 2 minus 1 upon 1 minus 4 upon 25, same to same. Simply इनको ऐड करके ये लिख दिया, बाकी सारा कुछ same to same आ गया. Principal as like, what is 27 square? 729. 25 square? 625. Minus 1 upon 1 minus 4 upon 25 is equal to 544 upon 10. Principal as like, what is the LCM here? 625. 625 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 625 आ जाए 1, 1 into 729, 729. 1 को बच्चे किससे करें? 625 into 1, 625. 25 को बेटा किससे करें? 25 into 4, 100 is 544 upon 10. Principal as like 729 minus 625, दोनों माइनस के, 2 negative signs, then they add 625 and 100, 725 upon 625 same is equal to 544 upon 10. Now principal is 544 upon 10, जो downwards था उस साइड जाके multiply,
एंड 729 माइनस 725 4 4 नीचे आ गया, 4 के टेबल पे बेटा ये कट हो गया, 4 1 जा 4, 14 4 3 जा 12, 24 6 4 जा 24, 5 के टेबल पे 125, 5 जा 625, 2 2 पे बच्चे ये कट हो गया, 6 8, व्हाट इज लेफ्ट 68 इंटू 125, इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर, 125 को 68 से, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 16 4 20, 2 कैरी, 8 2 10, 6 पे बच्चे 6 5 जा 30, 3 कैरी, 12 3 15, 1 कैरी, 6 7, 0 0 5 8 rupee 8500 is the principal. What we have to find? Find the sum. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 50 8500, that is the answer. यही बच्चे हमारा आंसर है. Now second sum. In question number 2, what they have given, a sum of money invested at compound interest amount to rupee 19360 in 2 years and rupee 23425.60 in 4 years. Find the rate percent and the original sum of money. Principal we have to find, rate we have to find. What is given? Amount in 2 years कितनी given है? rupee 19360 and amount in 4 year given, that is rupee 23425.60. First of all, amount in 2 years जो है वो फिर से मैं बेटा लिख रहा हूं 19360, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 plus rate upon 100 की पावर टाइम, टाइम इज गिवन 2, 19360, take it as equation number 1. Now amount in 4 years is rupee 23425.60, amount principal 1 plus rate upon 100 की पावर 4 is 23425.60 upon 100. डेसिमल हटाया बच्चे नीचे, 10 से 10 कैंसिल, is to be taken as equation number 2. अब इसके अंदर थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 या विद 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पावर 4 वाली ऊपर रखनी है, इसलिए डिवाइड इक्वेशन 2, 2 को 1 से डिवाइड करना है. दिस वन p 1 plus r over 100 की पावर 4 अपॉन इसकी लेफ्ट हैंड साइड p 1 plus r over 100 की पावर 2. इस साइड बेटा लेफ्ट साइड में 2 3 4 2 5 6, 10 कहां चला गया नीचे, और मेन लाइन के नीचे किससे डिवाइड करना है 19360 से. दिस वन. अब p से p कैंसिल, यहाँ पे सेम था, पावर क्या बच गई 2, मींस व्हाट इज लेफ्ट 1 plus r over 100 की पावर 2 आ गई. इसके इक्वल दिस वन 23426 अपॉन 19360, 10 into this 2 zeros. Now what we can do, this calculation is too tough, then what we can do, yes बच्चे, यहां पे ये पूरा पूरा कट हो रहा है 1936 के टेबल पे 100, यहां पे कट होके आ रहा है 121. अब नाउ इस साइड बच्चे r इज मिसिंग, पावर इज 2, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था, वी हैव टू फाइंड द रेट, पावर 2, इसको बच्चे कैलकुलेट करो, मतलब पावर 2 बनेगी 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 100 10 का, पावर 2 आ गई. अब यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर किया,
व्हाट वी गेट, पावर इज सेम तो बेस इज आल्सो सेम। हमने मेंशन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लिखना कि पावर इज सेम, हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। r अपॉन 100 किसके इक्वल, 11 अपॉन 10 के। r अपॉन 100 एज लाइक 11 अपॉन 10, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया। टेक द एलसीएम, r 10 इज द एलसीएम, 11 माइनस 10, जो ये 100 था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यहीं पे कर रहा हूं बच्चे। r 11 माइनस 10, 1 अपॉन 10 इंटू 100, 0 इज कैंसल्ड, सॉरी, रेट कितना आ गया, 10% पर एनम। अब जो रेट की वैल्यू है वो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कहीं पे मर्जी फिल कर दो, फर्स्ट में ज्यादा बेटर। आई कैन फिल, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में प्रिंसिपल एज लाइक 1 प्लस रेट कितना फाइंड किया हमने, 10 अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 19360, 0 से 0 कैंसल, प्रिंसिपल 10, 10 प्लस 1 की पावर 2, 19360, प्रिंसिपल एज लाइक 19360, 10 का स्क्वायर बेटा 100 बनेगा, ऊपर चला जाएगा, 11, 11 का स्क्वायर 121 नीचे आ जाएगा। नाउ 1936 बेटा 11 के टेबल में कट हो रहा है, 11 वन जा 11, 83, 11 77, यस 11 के टेबल पे बेटा 11 वन जा 11, 83, 7 जा 77, 66, 60, फिर 11 के टेबल में 160, 160 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 16000। दिस इज द प्रिंसिपल। रेट हमने ऑलरेडी फाइंड किया था 10% पर एनम। और एक चीज लास्ट में आंसर में प्रिंसिपल में रुपीज और रेट में पर एनम डालना नहीं भूलना। दिस इज ऑफ हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में बेटा, a sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum become 3 times of itself in 8 years. In how many years will the money become 27 times of itself at the same rate of interest per annum? A sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum become 3 times of itself. Let principal is rupee x, then amount 3 times 3x, कितने टाइम में, 8 years में, टाइम इज 8 years। अमाउंट का फॉर्मूला बच्चे, अमाउंट इज 3x ना, अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला p 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t इज इक्वल टू 3x, प्रिंसिपल x, 1 प्लस रेट वी हैव टू फाइंड, पावर t 8, 3x, x से x कैंसल, 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 8 इज इक्वल टू 3। इसको बच्चे ऐसे ही रहने दो एक बार। नाउ इन हाउ मच टाइम, नाउ लेट इन n years amount principal becomes, कितने टाइम बोला उन्होंने, 27 times of itself. Now amount is 27 times 27x, अमाउंट का फॉर्मूला p 1 प्लस r ओवर 100 की पावर n इज इक्वल टू 27x, प्रिंसिपल इज x, 1 प्लस r ओवर 100 की पावर n इज इक्वल टू 27, x, x से x कैंसल, here 1 plus r over 100 की पावर n कैन बी रिटन एज 3 दी पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 की पावर 3। अभी यहाँ यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं कि तुम्हारे सामने है बिल्कुल। here फर्स्ट और सेकंड 3 की वैल्यू ये है बेटे, यहाँ पे फिल कर दो। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ 3 from equation
फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन में फिल करो। सेकंड इक्वेशन बेटा ये है हमारे पास 1 प्लस आर सेकंड में फिल करनी है ना, पावर n, 3 की वैल्यू ये रहा 3, ये रहा 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 8, और 3 पावर और ऊपर थी तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 24। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो। बेस सेम, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 24 years। in 24 years amount becomes, principal becomes 27 times of itself। now question number 4, इस एक्सरसाइज का बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, on what sum of money principal we have to find, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। on what sum of money will compound interest payable annually for 2 years be the same as simple interest on rupee this, टू टर्म्स हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, कंपाउंडेड एनुअली है, और एक सिंपल इंटरेस्ट पे। on what sum of money will compound interest payable annually for 2 years, टाइम यहां पे कितना है 2 years, be the same as simple interest on, यहां पे प्रिंसिपल पता है, इसको बच्चे P1 ले लो, इसको P2 ले लो, कितना है रुपी 9430 इन 10 ईयर, टाइम कितना है यहाँ पे 10 ईयर, बोथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यहाँ पे भी रेट कितना है 5%, और यहाँ पे भी रेट कितना है 5% पर एनम। P डॉट ए डालना नहीं भूलना। वी हैव टू फाइंड द P1, मतलब इसकी जो on what sum of money will compound interest payable for 2 years will be the same as simple, यहाँ पे compound interest फाइंड करना है, यहाँ पे simple interest। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यहाँ पे P2 डाल दो, P2 की वैल्यू 9430, रेट 5%, टाइम 10 ईयर अपॉन 100, एक जीरो यहां से कैंसिल, एक जीरो यहां से कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 5 3 are 15, 1 carry 21, 2 45 to 47, that is a simple interest। now here compounded annually है amount, principal P1 1 plus rate 5 upon 100 की पावर 2, 520 कट हो गए 5 के टेबल पे, P1 20 is the LCM, 20 plus 1 की पावर 2, amount becomes P1 21 upon 20 की power 2, what we get, amount becomes P1 441 upon 400। now compound interest, amount minus principal, principal is P1, किसके इक्वल, जो सिंपल इंटरेस्ट है, लिखा हुआ है ना उन्होंने क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 2 ईयर के लिए, वो इसके 10 ईयर के 5% के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, ये कैलकुलेट किए बेटा हमने, ये वैल्यू यहां फिल हो जाएगी, P1 441 अपॉन 400 माइनस P1 is 4715, P1 is common, 441 अपॉन 400 माइनस P1 1 आ जाएगा बेटा, कॉमन चला गया P1 4715, P1 as like 400 441 minus 400 4715, principal 41 upon 400 4715, and principal P1 we calculate 4715 into 400, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, 41 नीचे आ गया, कट करो बेटा 41 के टेबल पे, 40 आई थिंक पूरा पूरा कट होगा, 41 1 जा 41, 61 1 5, यही आना चाहिए, 4715 को 41 के टेबल पे पूरा पूरा कट होगा। वी विल कैलकुलेट
4715 divided by 41. Yes, इसको बच्चे मल्टीप्लाई करो 0 0 5 4 20 2 6 4. तो कितनी अमाउंट प्रिंसिपल 46,000. That is the answer. This is the question number 4. Now we have question number 5. Fifth question में बेटा, Kamal and Anant each lend the same sum of money. मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एक, कमल एंड अनंत. यहां पे कमल और यहां पे अनंत. लेंड द सेम सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल इसका लेट कर लो एक्स है, तो सेम कमल ने भी कितनी मनी लेंड की है, ₹x फॉर 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली. कमल पहले था, इसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है. लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में साफ. आनंद रिसीव ₹50 15 मोर देन द कमल, मतलब find the amount of money lent by each and the interest received. Simple interest, principal x, rate 5 times 2 upon 100. Compound interest का formula amount minus principal, amount p 1 plus r over 100 की power t minus p. Principal x है, 1 plus rate वही 5 है बच्चे, upon 100 power 2 minus x. अब क्या लिखा है उन्होंने, जो आनंद है उसका इंटरेस्ट, मतलब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव किया है ना, सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 15. मींस नाउ कहने का मतलब उन्होंने ये दे दिया हमें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 15 ज्यादा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तभी 15 आएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट p into r into t upon 100 is equal to 15. Amount x, सॉरी ये रहने दो बेटा, हमने कैलकुलेट कर ही लिया ना, वही लिख दो. कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह ये वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी. x कटिंग बाद में कर देंगे हम, पावर 2 माइनस x माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज x into 5 into 2 upon 100, इसके इक्वल 15 के. नाउ दिस अ फर्स्ट टर्म, दिस सेकंड, दिस अ थर्ड टर्म, तीनों को अंडरलाइन कर दिया, तीनों में x कॉमन है, ये कट भी कर दो. 20 20 plus 1 21 हो जाएगा, 21 upon 20 का स्क्वायर 441 upon 400 माइनस 1 क्योंकि x कॉमन चला गया है. यहां पे भी कट कर दो, 20 10, x कॉमन चला गया, 1 by 10 is left is equal to 15. x 400 is LCM, 400 किससे मल्टीप्लाई करें 1, 441 ही आ जाएगा. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 400, 400 into 1 400, 10 40 41 जा 40, 15. x 441 में से 440 माइनस किया 1, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, प्लस हो जाएंगे, 440 आ जाएगा अपॉन 400 इज इक्वल टू 15 एंड x 15 into 400. x की वैल्यू क्या आ गई, 15 4 60, साथ में 2 zeros. Therefore principal invested is ₹6,000 each. This is the answer. एक आंसर आ गया. Now they have also asked to find the interest received. जो बच्चे p की वैल्यू आ गई है, p क्या है x, x की वैल्यू आ गई है ना हमारे पास, वो यहां पे और यहां दोनों में जगह पे फिल कर दो. फर्स्ट इक्वेशन में भी फिल करो, 6,000 into 5 into 2 upon 100, और यहां पे भी फिल करो. कैलकुलेट द इंटरेस्ट रिसीव्ड, SI and CI. You have to do it yourself. अपने आप ट्राई करोगे, सिंपल है, वैल्यू फिल करनी है और कैलकुलेट करना है एंड नथिंग एल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Simple interest on a sum of money for 2 years at 4% per annum is 450. Simple interest is given ₹450. Time is given 2 years. Rate is given 4% per annum. Per annum डालना ही डालना है. सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया 450,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 is 450. Principal, we have to find rate for time 2 year upon 100 is 450. Simple calculation. Principal as like 450 into 100, 4 and 2 downwards. 4 के टेबल पे बेटा ये 100 कट हो गया 25 पे, ये 225. अब प्रिंसिपल 25 5 is 125, 12, 50, 12, 62, 6, 50, 56. 5625. This is the principal. Find the compound interest on same sum at the same rate for 2 years. Now, principal is rupee 5625. Rate, same rate बोला उन्होंने बेटा, rate of interest 4% per annum. And time 2 years. We have to calculate now compound interest. First of all, we have to find the amount. देखो सीधा डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बट मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि पहले अमाउंट फाइंड कर लो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी. प्रिंसिपल की वैल्यू हमने फाइंड की थी इसी प्रिंसिपल पे बेटा. रेट 4 अपॉन 100 टाइम इज 2. कट हो रहे हैं 25, 5625. दिस वन 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर. 5625 into 26 upon 25 into 26 upon 25. 25 के टेबल पे 25 to the 50, 62, 50, 125, 5. 25 के टेबल पे 9 पे 9, 26 into 26, 26 square is 676. 9 6 are 54, 5. 9 7 are 63, 5, 68, 6, 54, 6, 60. Amount we receive is 64084. This is not the answer. Sorry. We have to calculate the compound interest. Amount minus principal. Amount is 6084 and principal is 5625. 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 10 में से 6 गए 4, 459 is the compound interest. I just have to check the answer. This is question number 6, 3B. 3B का 6 का आंसर 459. That is the correct one. आगे समझ बच्चे. This is question number 6. Now we have question number 7. Simple interest on a sum of money for 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum. यहां बच्चे सिंपल इंटरेस्ट डाल दो, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट डाल. सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी. प्रिंसिपल को x रुपी लेट कर लो. लेट प्रिंसिपल बी x रुपीज. 4% में एक्सीड द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम, तो यहां पे भी प्रिंसिपल क्या होगा, रुपी x होगा. सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर. टाइम इज 4 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम. exceeds the compound interest. अब सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से. क्यों ज्यादा है, एक मिनट. सिंपल इंटरेस्ट exceed the compound interest the same sum for 3 years because time is changed here 3 years. यहाँ टाइम 4 ईयर है, यहाँ पे 3 ईयर है. रेट चेंज कर दिया 5% पर एनम. T1 T1 R1. P तो चाहे P रखो, P को रहने दो. T1 and T2 and R2. Time is changed. Now which one is greater? Simple interest is greater. किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से. कितना एक्सीड कर रहा है, 228 सॉरी. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट R1 टाइम T1 अपॉन 100. अमाउंट का फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. एक बार बच्चे मैं ये लिखूंगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा बट इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती. प्रिंसिपल की वैल्यू x, R1 की वैल्यू 4 ये रही, T1 की वैल्यू 4 ये रही सेम, अपॉन 100 माइनस अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इज x, 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 की पावर t 3 ईयर माइनस प्रिंसिपल x.
is 228. ब्रैकेट को ओपन कर दो, कट करना है कट कर दो, 25 4x अपॉन 25 माइनस इसको कट कर लो 20 माइनस x 20 प्लस 1 21 का क्यूब बनेगा 441 होता है 441 को 21 से 21 1 21 2 84 2 86 8 84 6 90 1 21 1 21 2 84 86 8 84 8 92 9261 अपॉन 20 का क्यूब बेटा 8000 माइनस x इज 228 वन टर्म टू टर्म्स थ्री टर्म तीनों में बच्चे x इज कॉमन 4 अपॉन 25 माइनस 9261 अपॉन 8000 क्योंकि x कॉमन चला गया है। कॉमन का मतलब तीन टर्म्स हैं तो तीनों में से कॉमन जाएगा, यहां से भी x बाहर चला गया, यहां से भी, यहां से भी। यहां से x चला गया तो 4/25 बच गया, यहां से चला गया तो ये बच गया, यहां से चला गया तो 1 बच गया। 8000 इज द एलसीएम 228। 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8000 आ जाए? 25 3s are 75 50 to 320 320 into 4 4 0 0 4 2 8 4 3 12 no I think I went wrong 25 3s are 75 okay यहाँ बच्चे प्लस आएगा, सॉरी माइनस था ना ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ प्लस आएगा, ये मिस्टेक है, सही है 9261 प्लस 8000 x इन दोनों को बच्चे ऐड किया 9280 माइनस 9261 अपॉन 8000 कुछ नहीं है, सेम टू सेम फॉर्मूलाज। माइनस किया 80 में से माइनस किया तो 90 आ जाएगा अपॉन 8000 is 228 x we have to find 228 8000 ऊपर चला गया 19 नीचे आ गया 19 1 19 38 19 2 38 12 8 96 96,000 therefore principal is rupee 96,000 that is the answer। ये आंसर है बेटा हमारा। now we have question number 8 compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is this। now compound interest is given कितना रुपी 246 rate percent 5% per annum given है, time 2 year given है। calculate the simple interest। अब compound interest की जगह compound interest का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 246 अमाउंट p 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t माइनस p इज 246 प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, p दोनों में से कॉमन आ गया 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t माइनस 1 p इज कॉमन। एक्चुअल में दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। डायरेक्ट लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा बेटर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगता है। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 टाइम 2 minus 1 246 as like simply fill the values। प्रिंसिपल ये कट हो रहा है बेटा 120 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1 is 246 प्रिंसिपल 441 अपॉन 400 minus 1 is 246 प्रिंसिपल एज लाइक 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा बेटा अपॉन 400 246 प्रिंसिपल 246 400 ऊपर चला गया 41 नीचे आ गया। आई थिंक 41 6 246 यस 6 4 24 प्रिंसिपल क्या आ गया 2400 रुपीज। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, किस प्रिंसिपल पे जो यहां से आएगा हमारे पास आ गया। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्रिंसिपल इज 2400 रेट 5 टाइम 2 अपॉन 100 5 to the 10
10 into 24 240. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 240 आ गया. दिस इज आंसर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. A certain sum of money amount to 23,400 in 3 year and 10% simple interest. Find the amount of same sum in 2 year at 10% per annum compound interest. A certain sum of money amount to amount given है 23,400 in 3 year. Time कितना 3 years. 10% simple interest per annum simple interest. ये simple interest है. क्या चीज कैलकुलेट करनी है बेटा हमने फाइंड द अमाउंट फाइंड करनी है. क्या कब सेम सम प्रिंसिपल सेम है जो यहां से होगा 2 year. टाइम इज 2 year. 10% रेट 10% per annum. What we can do? प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लें. यहां पे भी लेट प्रिंसिपल इज ₹x. सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल गिवन है हमें नहीं गिवन सॉरी. सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चे हमारे पास 23,400. प्रिंसिपल इज x. दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100 23,400 minus x. I simply fill the formula. Principal is x, rate is 10, time is 3, upon 100 is 23,400 minus x. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो. x इंटू 3 3x. 10 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 23,400. 10 को x से किया 10x. एक साइड पे 3x 10x x इस साइड आगे प्लस हो गया 23,400. But we get 13x is equal to 23,400 and x is 23,400 upon 13. 13 के टेबल पे बेटा कट हो रहा है. 13 1 13 104 साथ में 3 zeros. x कितना आ गया 18,000. मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया ₹18,000 क्योंकि x को क्या लेट किया था प्रिंसिपल. Now we have calculated the principal 18,000 sorry. Rate 10% time 2 years. अमाउंट फाइंड करो. कंपाउंडेड लिखा हुआ है उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे. फॉर्मूला लिख दिया बेटा पहले मैंने. प्रिंसिपल 18,000 फाइंड की है. 1 प्लस रेट 10 है. 100 टाइम 2. इस साइड सिंपल इंटरेस्ट में टाइम 3 ईयर था बट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 2 ईयर है. We have to find the amount, not the compound interest. Okay, अमाउंट ही फाइंड करना है तो सिंपल ही आ जाएगा हमारे पास. 0 से 0 कैंसिल 18,000. 10 प्लस 1 11. 11 अपॉन 10 का स्क्वायर किया 121 अपॉन 100. 2 zeros कैंसिल. 18 एक जीरो तो आएगी क्योंकि ऑलरेडी है. 18 1 18 1 कैरी 36 37 3 कैरी 18 3 21. तो अमाउंट कितनी आ गई ₹21,780. This is the answer. Now the last sum of this exercise, that is the question number 10. Mohit borrow a certain sum at a 5% per annum compound interest and clear his loan by paying 12,600 at the end of the first year and ₹17,640 at the end of second year. Find the sum borrowed. Sum borrow find करना. Yes, what we have to do in question number 10. फिर से बच्चे मोहित ने मनी बोरो की 5% per annum compound interest and cleared his loan by paying ₹12,600 at the end of 1 year. मतलब 1 year के लिए अमाउंट उसने कितनी पे की 12,600. 2 years के लिए अमाउंट सेकंड ईयर के लिए 17,640 rupees is must. This is rupees. Rate 5%. टाइम 1 ईयर क्योंकि आफ्टर 1 ईयर पे किया है ना. यहाँ पे रेट वही है 5% है बट टाइम इज 2 years. अमाउंट P 1 plus R over 100 की पावर T. This to be taken as amount 1 12600
P1 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 की पावर 1 कट हो गया 20। जब भी इस टाइप का सम आएगा तो दोनों की प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, दोनों वैल्यूज दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द टोटल मनी लैंड। उतनी मनी प्रिंसिपल आ जाएगा टोटल। 20 एलसीएम आएगा, 20 प्लस 1 21 अवॉर्ड 20 आ जाएगा बेटा। प्रिंसिपल 12,600, 20 ऊपर 21 नीचे, 21 6 126, साथ में 2 zeros, कितना आ जाएगा 6 to the 12 रुपी 12,000 इज द प्रिंसिपल 1। इस साइड P1 लिख सकते। नाउ सेम हियर अमाउंट 2 लिख दो बच्चे, A2 P2 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 की पावर 2 आ जाएगी। अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट की जगह बच्चे 17640, P2 हमने फाइंड करना है, इसको कट किया 20 आ जाएगा, सेम टू सेम 21 अपॉन 20 441 अपॉन 400 आ जाएगा। कैलकुलेट सीधा मैंने शॉर्टकट मारा है यहाँ पे, तुमने पहले एलसीएम लेना है उसके बाद सॉल्व करना है। 17640 400 ऊपर 441 नीचे, 441 के टेबल पे कितने में जाएगा बच्चे 4 पे 40 पे कितना आ गया ₹16,000 आ गया। दैट इज द प्रिंसिपल सेट। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द सम बोरोड। देयरफॉर सम बोरोड इसके इक्वल P1 प्लस P2। प्रिंसिपल 1 इज 12,000, प्रिंसिपल सेकंड इज 16,000, दोनों को ऐड करो, we get 28,000 is the total sum borrowed, that is the answer। तो हमारी एक्सरसाइज 3B is completed now, complete हो गई है बेटा। Anyone having doubt, he or she can contact me on 7009509669। like, subscribe and share करना मत भूलना। Thank you, have a nice day।